Yoga is a So recording. your recording has started. Yeah. As quoted, yoga is a mirror to look at ourselves from within. A very good evening to everyone. This is Bhavya Yadav, and on behalf of Corporate Workshop Committee, we are thrilled to organize a corporate workshop on International Yoga Day, which is today, with Yogacharya Moksha Ma'am. Anand Yog from Life Excellence conducts yoga meditation classes and stress management and personality development courses at individual or organization level of different parts of India. Corporate and institute where Anand Yog Life gave and are giving services are Titan India, and DNA Newspaper, New Z Group, Intercultural Open University, Netherlands, Vedic Foundation of Indian Management, Health Online Foundation, Tech Mahindra, Sapin India, etc. The team comprises of 8 to 10 trainers, including yoga teachers, naturopath, Ayurvedacharya, homeopath, etc. in the panel. They have coached around 100 plus yoga trainers, holistic health therapists, and thousands of yoga practitioners. With this, I hand over to you, ma'am, to take us further. Thank you. Okay. So this is the Namaskar everyone. This kind of intro is good, but basically being Yogacharya, I'm a creative person also. I'm a painter and educated from the School of Art. So everyone should have the creative knowledge and creative. The person is should be creative inside. So it is good to be a natural spirituality inside. Okay, so let us start the yoga session today. We'll start from the meditation, being a calm ourselves, and we'll do later on the some asanas, pranayam, and meditations. Okay, so in the yoga, you have to sit in the proper form. So we have the, our body is made up of 5 elements, and we have the inner subtle chakras inside. Like our body is there, our organs are there, and our mental aura is there. And in the mental aura, the spinal cord, we have the 7 plexus. So these are all plexus is giving our behavior things, means वृत्तियों पे रहता है, and they are controlling our body. Okay, so let us start the meditation. तो हम लोग ध्यान से शुरू करेंगे. Sit in the proper seating position. This is Sukhasan. राइट लेफ्ट में ये आपको शायद उल्टा भी दिखेगा. लेफ्ट अंदर करते हुए राइट को ऊपर करना है. सो दिस इज स्वस्तिकासन. यू कैन सिट इन द पोजिशन दिस वे एंड यू कैन डू द पद्मासना व्हेन यू आर रेगुलर प्रैक्टिशनर. ओके, या फिर आप सिंपल इसमें बैठ सकते हैं. ओके, एंड द मुद्रा इज लाइक दोनों हाथों को ओपन करते हुए आप नीज में रख सकते हैं. बैक शुड बी स्ट्रेट. स्लोली क्लोज योर आईज. आंखें बंद करते हुए टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट. एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ें. Let us chant with the Om Dhyan. Om is the sound of nature. Om.
धीरे धीरे हम ध्यान में प्रवेश करेंगे. Start the meditation. Take a long deep breath and breathe out. एक लंबा गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ें. Feel the God outside everywhere. अपने शरीर के बाहर भगवान को देखें सभी जगह. Breathe in and feel him inside. सांस लेते हुए अपने शरीर में परमात्मा एहसास करें. Listen the flute sound inside and outside. धीरे धीरे अपने पैरों में ध्यान देते हुए concentrate the legs. Concentrate in the waist portion. अपने कमर में ध्यान देते हुए concentrate in the stomach areas. Feel the God existence inside your stomach portion. परमात्मा एहसास करें. धीरे धीरे अपने चेस्ट में ध्यान देते हुए परमात्मा ऊर्जा का एहसास करें. Feel the God existence inside your chest portion. Concentrate in the neck portion. Feel his presence. Concentrate in the face portion. Feel his presence inside the face. अपने चेहरे में परमात्मा एहसास करें. Concentrate in the head portion. Feel the God presence inside your head portion. परमपिता का एहसास अपने सर के पोर्शन में करें. Concentrate forehead, neck and chest. Breathe in and breathe out. सांस लेते हुए अपने शरीर में परमात्मा एहसास करें. परमपिता को देखें और सांस छोड़ते हुए शरीर के बाहर सभी जगह उन्हें देखें. Breathe in and feel the closeness to the God. परम पिता को करीब से अनुभव करें.
Breathe out and feel him everywhere. उन्हें सभी जगह अनुभव करें. Breathe in. And breathe out. Nityam Shuddham Nirabhasam Nirakaram Niranjanam Nityabodham Chidanandam Guru Brahma Namah. Salute to the Lord's lotus feet inside your mind. Touch your forehead and touch your chest. Okay, so this is meditation. Okay, so this is the meditation to enhance your body, mind and soul. तो अब हम स्ट्रेचिंग्स करेंगे स्लाइली स्टैंडिंग पोजीशन में. स्ट्रेचिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से हमने मेडिटेशंस किया. ओके, तो स्ट्रेचिंग जैसे बॉडी है तो हमारा एग्जिस्टेंस, आवर सोल इज इनसाइड आवर बॉडी. माय वॉइस इज क्लियर आई थिंक. मेरी आवाज सभी को आ रही है? ओके, तो हाँ, सभी लोगों ने कैमरा तो ऑन किया है, लेकिन आप करेंगे ऑन करके तो ज्यादा अच्छा होगा. ओके, तो ओके, सो स्ट्रेच योर फिंगर्स. रिस्ट को इस तरह से रोटेट करना है, क्योंकि जॉइंट्स आप देखेंगे आवर सोल इज इन आवर बॉडी. जैसे हम हमारे घर का ख्याल रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं और अपने बॉडी को भूल जाते हैं क्लीन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का, जब शरीर रहेगा तभी आप घर क्लीन करेंगे या बाकी सब चीजें करेंगे. इसीलिए शरीर को पहले स्वस्थ बनाना है. रोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप 5 मिनट 2 मिनट भी सुबह कर सकते हैं, जब भी इवनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशन से आपका जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल तो होते ही हैं. ब्लड सर्कुलेशन होता है. आप देखेंगे हमेशा एक ही पोजीशन में रहने से, क्योंकि अपने से जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो हमारे एयर्स रहते हैं उन्हें 10 वायुस बोलते हैं. वो अपने से प्रेशर में, जैसे आप देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर होता है, तो नेचुरली एक कॉस्मिक सोल हमारे बॉडी में प्रेशराइज होता है ब्लड के लिए. लेकिन हमें जब आउटसाइड मूवमेंट देंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है. तो ये हमारा जो है शोल्डर रोटेशंस, और इसे आपको बहुत ही जिम्स और ये करने पड़ते नहीं हैं, इसीलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल रोटेशंस है, सहज आप कर सकते हैं. ओके, हैंड रोटेशंस, और इसे आपके बॉडी फैट्स कम होते हैं. बहुत सारे फायदे हैं. बॉडी फैट्स कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो, जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है. जैसे काफ़ी लोगों को लो बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है, तो नॉर्मली जैसे लो बीपी रहता है तो आपके हैंड मूवमेंट्स इस तरह से गोल आप करेंगे 10-20 बार तो भी आपका बीपी में, और क्लैपिंग करेंगे तो भी आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है. और बाकी जो आयुर्वेदिक और नेचुरल रेमेडीज यानी फ्रूट्स वगैरह तो है ही, वो हम लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे तो उसका ज्ञान हो सकता है. ठीक है, तो नेक रोटेशन from left to right, then right to left. नेक रोटेशन से आपका थायराइड का भी उसको हेल्प होता है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में भी पहुंचने में हेल्प होता है. ठीक है, तो ये हुआ. एंड वी विल डू द नीज लेग स्ट्रेचिंग्स. फिंगर्स को इस तरह से थोड़ा सा ये करेंगे, रोटेट करेंगे उसको, एंड स्लोली अप एंड डाउन.
इस तरह से करते हुए थोड़ा सा ये करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको 2 मिनट जॉगिंग करना है। और लेट अस डू द ताड़ासन। ताड़ासन इज वेरी इंपॉर्टेंट आसनास। ताड़ासन आप टॉयलेट जाने से पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रेचिंग योर मसल्स फ्रॉम लेग्स टू हैंड्स एंड फ्रॉम दिस स्टमक एरियाज। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग जैसे ही करते हैं तो आपके जो स्टमक पोर्शन है उसमें आपके जो इंटेस्टाइन स्ट्रेच होते हैं। ये ताड़ासन है। ब्रीद इन एंड होल्ड द ब्रीथ। ओके, let us do it again. Breathe in, hold the breath and stretch your legs and hands. तो ये ताड़ासन में क्या होता है, जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रेच होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांस में स्ट्रेच होते हुए आपका जो इनर स्टूल है वो प्रेशर में आते हुए आपको आसानी से प्रेशर आ जाता है। दिस इज ताड़ासन। ब्रीद इन एंड होल्ड द ब्रेथ। ओके, रिलैक्स। तो आप ये 5-6 बार कर सकते हैं। ब्रीद इन, इतना ताड़ासन में इतना नीचे नहीं झुकना है, आपको सीधा ब्रीद इन करते हुए सीधा करना है। यही किया आप 6, 7, 8 टाइम्स कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ताड़ासन एंड लेट अस डू द पादहस्तासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड बेंड इन द चेस्ट। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। फिर से सांस लेते हुए ब्रीद इन, सांस को छोड़ते हुए ब्रीद आउट, स्लोली ब्रीद इन, सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए। इसमें आपका जो ये पोर्शन है वो स्ट्रेच होगा अच्छे से। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बेंड इन द चेस्ट। तो पादहस्तासन आपको पेट साफ करने के बाद ही करना है। बिफोर टॉयलेट यू शुड डू ओनली द ताड़ासन एंड, और एक प्रवन मुक्तासन है वो लाइंग डाउन में आपको मैं बता दूंगी। सो दिस इज द ताड़ासन एंड पादहस्तासन, इंपॉर्टेंट आसनास। ओके, सो हम लोग अभी जो है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ज़्यादा क्रियाएं और ये नहीं बता सकते, दिस इज द इंट्रो सेशन। ओके, सो अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं। तो 12 पोस्चर्स में आपके जो इनर ग्लैंड्स मैंने अभी बताए थे, मेनली वी हैव द एड्रिनल ग्लैंड इन द स्टमक, थाइमस ग्लैंड इन द चेस्ट एंड थायराइड इन द नेक एरिया और इन द थ्रोट। सो दीज 3 ग्लैंड्स इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। तो इसी से हम लोग की जो हार्मोन सिक्रेशंस होती हैं वो आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार में इसे हम लोग किस तरह से ये कर सकते हैं। 12 पोस्चर्स हैं। तो ये क्या हो रहा है? सो ब्रीद इन, दिस इज प्रणाम मुद्रा। हम लोग मंत्र के साथ करेंगे इंट्रो। ओम मित्राय नमः। ब्रीद आउट। ओम रवे नमः। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओम सूर्याय नमः। देन राइट लेग near the chest. Breathe in. Om Bhanve Namah. Then both legs together. Om Khagaya Namah. Then breathe out. Om Pushne Namah. Then slowly breathe in. Bhujangasana. Om Hiranyagarbhaya Namah. Then breathe out, triangle position. Om Mariche Namah. Then left leg near the chest.
Om Adityaya Namaha. And both legs together. Om Savitre Namaha. दोनों हाथों को breathe in and bend in the chest. Om Harikaya Namaha. Pranam Mudra. Om Bhaskaraaya Namaha. Om Savitre Shri Surya Narayanaaya Namaha. Okay, so this is the 12 postures of सूर्य नमस्कारा. तो आप ये अभ्यास से आप आसानी से कर सकते हैं. इसमें सांस क्रिया इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारे पोस्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं. जिन्हें बैक पेन है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उन्हें इसे ध्यान से सोच समझ के करना है, और उन्हें नहीं करे तो अच्छा है, और जब बॉडी स्वस्थ हो जाएगी तब करना है. तो ये सूर्य नमस्कार के साथ साथ हम एक यौगिक डांस कौशिकी का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को सीधा करके. कौशिकी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट यौगिक डांस टू क्योर योर मोर देन 30 डिजीज. ये भी आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो करता है. तो सभी को कौशिकी सहज रूप से कर सकते हैं. 1, जैसे राइट लेग से 1 2 1 2 1 2, right left, right 1 left 2, 1 2 1 2 1, फिर 1 2 3 4 and 5. Left bend 1 2 3 4 and 5 straight. Front 1 2 3 straight. Back 1 2 3 straight. 1 2 1. Right 2 3 4 and 5 straight. Left bend 1 2 3 4 and 5 straight. 1 straight, 2 down, 3 straight. Back 1 2 3 and 4 5. Okay, namaskar. So this is Kaushiki. You can practice every day 3 minutes. So this is improving your all hormonal balance as well as the more than 30 disease. So this is the intro of the Kaushiki. Okay, so take a long deep breath, close your eyes. एक लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ें. Relax your stomach portion. Take a long deep breath and breathe out. जैसे आप स्ट्रेचिंग्स करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो रिलैक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द योगासना, इन द स्पोर्ट्स एंड एवरी टाइम. तो योगा रिलैक्सेशन से जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके जो सेल्स है वो रिजुविनेट होते हैं. ठीक है, तो क्लोज आइज करते हुए डीप ब्रीदिंग करेंगे तो तुरंत आपको रिलैक्सेशन मिलेगा. लेट अस डू द सीटिंग आसनास. तो हम लोग बैठ जाते हैं इस तरह से. Okay, we'll do this वज्रासन. वज्रासन में आपको इस तरह से बैठना है वी शेप में. वी शेप में इस तरह से बैठते हुए आप ये वज्रासन जो है खाना खाने के बाद आप बैठ सकते हैं ऐसे इस पोजीशन में, लेग्स के पोजीशन में. वज्रासन इज अ वेरी गुड आसना टू डाइजेस्ट योर फूड. ओके, तो हम लोग ये वज्रासन में बैठते हुए इस तरह से बैठते हुए दीर्घ प्रणाम करेंगे. इस पोजीशन में दोनों हाथों को इस तरह से लेते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट. व्हेनेवर यू गो डाउन ब्रीद आउट. और धीरे धीरे आफ्टर 10 सेकेंड्स सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे. फिर से एक बार सांस लेते हुए ब्रीद इन और सांस को छोड़ते हुए ब्रीद आउट. और स्लोली सांस को लेते हुए रिलैक्स. फिर से एक बार
breathe in, breathe out, slowly breathe in and relax. तो ये दीर्घ प्राणायाम भी हमारे डाइजेशन को ठीक करता है और हमारी पेट की जो ऊर्जा है, हीट है, उसको बैलेंस करता है। ओके, और साथ साथ जो सैलिट्यूड एटीट्यूड है वो भी, मतलब समर्पण भाव बढ़ाता है। तो आइए हम लोग इसके साथ साथ ये करेंगे, पैरों को फैला देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स करेंगे, नीज को अप एंड डाउन, रोटेशंस, नीज रोटेशंस, और हम लोग थोड़ी सी नीज को स्ट्रेच करेंगे, खींच लेंगे। तो जिनको आर्थराइटिस है वो भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, उससे आपका लिगामेंट्स अच्छा इंप्रूव होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आपको लेफ्ट लेग्स को इस तरह से ऊपर रखना है, लाइक, ठीक है, लेफ्ट लेग को इस तरह से ऊपर रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए साइड में आपको हाथ रखेंगे और सीधा बैक साइड। ब्रीद इन एंड रिलैक्स, ये बंद कर, हवा आ रही है। ओके, फिर से ब्रीद इन, हवा, why you are not listening, breathe in, breathe out, ट्यून ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। डाउन करते हुए बैक साइड में हम लोग करेंगे। स्लोली ब्रीद इन एंड रिलैक्स। तो वक्रासन में आपका जो स्पाइन है उसको रिलैक्सनेस मिलता है। फिर से लेफ्ट साइड में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पीछे देखना है। और सांस लेते हुए रिलैक्स करना है। फिर से राइट लेग्स को इस तरह से बेंड करते हुए हाथ को बैक साइड में रखें, ब्रीद आउट करते हुए पीछे देखें। ओके, रिलैक्स। तो ये हमारा वक्रासन था। वक्रासन से आपका स्पाइन जो है उसे आराम मिलता है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीद आउट। इस तरह से हम लोग सहज करेंगे। सांस को लेते हुए चेस्ट को ऊपर करें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। सहज में आपका जो लंग्स है वो उसे मजबूती मिलती है, चेस्ट एरियाज को एक्सरसाइज मिलता है, उस तरह से हार्ट को भी आपका एक्सरसाइज होता है। जैसे एक बार ब्रीद इन एंड रेज योर चेस्ट, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। जैसे एक बार ब्रीद इन एंड रेज योर चेस्ट। ओके, रिलैक्स। इसमें पीछे पीछे किया बहुत। ओके, सो लेट अस डू द योग मुद्रा। तो योग मुद्रा में हम लोग करेंगे सेम स्वस्तिकासन में लेफ्ट लेग को अंदर करते हुए राइट लेग को ऊपर करेंगे। और ये जो क्रिया है हम लोग पद्मासन में भी कर सकते हैं। राइट लेग को आपको ऊपर करना है ऐसे, ठीक है। तो जिनका ये नहीं हो रहा वो इस तरह से स्ट्रेचिंग्स भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए या फिर इस तरह से मूवमेंट करते हुए आप आराम से इसे ये पोजीशन में ला सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेचिंग्स में 1 2 3
4 करते हुए देन इस तरह से मूवमेंट करते हुए आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये स्वस्तिकासन है और ये है पद्मासन। बहुत डार्क हो रहा है। ओके, तो हम जो है योग मुद्रा में इस तरह से करते हुए पद्मासन में योग मुद्रा करेंगे। इसमें आपको जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ते हुए सांस लेके फिर सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड में झुकेंगे। स्लोली ब्रीद इन आफ्टर 10 सेकेंड्स, सांस लेते हुए ऊपर करें। फिर राइट साइड में ब्रीद इन ब्रीद आउट। धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर, फिर सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए होल्ड करना है सांस को। स्लोली ब्रीद इन एंड रिलैक्स। फिर से एक बार ब्रीद इन ब्रीद आउट ऑन द लेफ्ट साइड, होल्ड द ब्रीथ। स्लोली ब्रीद इन अनदर साइड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस को छोड़ते हुए होल्ड करना है। Exit. Please breathe in, breathe out. Hold the breath outside. After 10 seconds, breathe in and relax. दोनों हाथों को पीछे से रेस्ट करते हुए सर्वोष्टासन, ब्रीद इन एंड रेज योर चेस्ट। स्लोली ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अगर आपको हाथ को रेस्ट भी करने में अगर दिक्कत है तो इस पोजीशन में आप कर सकते हैं। थंब को जो है इस तरह से रखते हुए ऐसे भी आप हाथ में रख सकते हैं, थंब पे थोड़ा सा जोर देते हैं। ओके, फिर से एक बार सर्वोष्टासन करेंगे। ब्रीद इन एंड रेज योर चेस्ट। सांस को लेते हुए रिलैक्स। सर्वोष्टासन लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आसन है। इसे आप रोज करें 6-7 बार। फिर से हम लोग करेंगे योग मुद्रा। एक बार ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। इन द मिडिल ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस को छोड़ते हुए स्लोली ब्रीद इन एंड रिलैक्स। तो दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, रोटेट करेंगे। हर आसन में आपको इस तरह से रिलैक्स करते हुए रोटेट करना बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबल के लिए। ओके, और एक आसन मैं आपको बताऊंगी कि जिससे बैक एक आपका बैठे बैठे कैसे रिमूव हो सकता है। मार्जर आसन, कैट पोस्चर, एवरीवन नो। दोनों हाथों को इस तरह से करते हुए सांस लेते हुए ब्रीद इन करते हुए स्पाइन को इनसाइड खींचे, कमर को अंदर की ओर खींचना है। ब्रीद आउट करते हुए स्पाइन को ऊपर की ओर खींचना है। स्ट्रेच योर बैक आउटसाइड। अगेन ब्रीद इन, स्ट्रेच इनसाइड। ब्रीद आउट, स्ट्रेच आउट। पूरी तरह से ऊपर की ओर पीठ को खींचना है यू टर्न में। फिर से एक बार ब्रीद इन, सांस लेते हुए पीठ को अंदर की ओर खींचना है। सांस को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर खींचना है। ओके, सिट इन द वज्रासन। तो जैसे आप 2 आवर्स कंटिन्यू कंप्यूटर पे काम करते हैं 1 आवर में, तो आपका स्पाइन जो है दर्द होता है, परेशान होता है।
तो आपको रिलीफली 2-3 बार भी आप मार्जरासन करते हैं तो भी आपको रिलीफ मिलता है इसे। ठीक है, तो हम अभी लाइंग डाउन आसनास करेंगे। लाइंग डाउन आसनास में आपको पीठ पे लेट जाना है। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। लाइंग डाउन आसनास में आज मैं एक आसन बताऊंगी, पवन मुक्त आसन। जैसे ही आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद भगवान का नाम लेते हुए फिर आपको बाद में ये क्रिया करनी है, पवन मुक्त आसन लेटते हुए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच योर दिस राइट लेग नियर द चेस्ट। शायद मेरा कैमरा जो है डार्क हुआ। ठीक है, तो सांस को छोड़ते हुए आपको स्ट्रेच करना है, नीज को ट्राई टू टच योर नोज टू नीज, रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग्स, breathe in and relax, do it again, breathe in, breathe out, सांस को लेते हुए रिलैक्स करेंगे। आपको ये जानना है जैसे ही आपको टर्न होना है तो सांस को छोड़ना है, और पवन मुक्तासन में सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है, आपके इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करना है। तो आप देखेंगे इसका जो है, इससे आपका जो प्रेशर है तुरंत आ जाता है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए दोनों पैरों को आप स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें, और आपका कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होता है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए दोनों पैरों को पेट में स्ट्रेच करते हुए ट्राई टू टच योर नोज, और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को इस तरह से रखते हुए भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे उसे छोड़ें। रिलैक्स योर स्टमक पोर्शन, रिलैक्स योर स्टमक एरिया, पेट को रिलैक्स करना है। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ें। अब हम करेंगे भुजंगासन, लाइन डाउन ऑन स्टमक, पेट पे लेट जाएंगे। भुजंगासन में 3 भुजंगासन होते हैं। जब आपको समय नहीं रहता है तो सिर्फ 3 भुजंगासन करने से भी आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस हो जाते हैं। तीनों ग्लैंड्स, एड्रिनल, थाइमस और थायराइड, तीनों एक्टिवेट हो के आपका बॉडी सिंक्रोनाइजेशन इनसाइड बैलेंस हो जाता है। आपके बॉडी को भी स्ट्रेचिंग्स मिलता है पूरी तरह से, स्पाइन को। तो इसीलिए आइए हम लोग करते हैं भुजंगासन। लाई डाउन ऑन स्टमक, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए, बहुत ही आसान आसन भुजंगासन। ब्रीथ इन करते हुए पूरे स्पाइन को इस तरह से आप खींचे, इससे आपका जो नेवल पॉइंट का नीचे का हिस्सा है ओवरीज का, जिसे यूरिनरी ये होता है, इसको लेते हुए हम लोग स्ट्रेच करेंगे। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स, टर्न द नेक। फिर से दोनों हाथों को स्ट्रेच में रखते हुए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए टर्न करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसमें दूसरा एक पोजीशन है, दोनों हाथों को इस तरह से आराम से रखते हुए नेवल पॉइंट तक ऊपर उठाना है। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो ये भी आप 5-6 बार कर सकते हैं। और उसी तरह से तीसरा जो है, चेस्ट में, चेस्ट के बगल में दोनों हाथों को रखते हुए सिर्फ चेस्ट तक ऊपर उठाना है। ब्रीथ इन एंड रेज योर बॉडी टिल द चेस्ट। तो आपके चेस्ट में, लंग्स में प्रेशर आते हुए
जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारी एक्टिवेट होती है और वहाँ के जो प्रोपेंसिटीज हैं वो काम करते हैं। ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। फिर से एक बार, ब्रीद इन एंड रेज योर बॉडी टिल द चेस्ट। चेस्ट में प्रेशर आएगा। टर्न द नेक। इसे हम शिथिलासन में रेस्ट करेंगे, एक हाथ को बेंड करते हुए, पैर को बेंड करते हुए डीप ब्रीदिंग करेंगे। और हम अब रिलैक्सेशन करेंगे। लाई डाउन ऑन द बैक साइड। सो लेट अस डू द रिलैक्सेशन। दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए स्प्रेड करेंगे, दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। आंखें बंद करते हुए रिलैक्सेशन करना है। एक लंबा सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। Take a long deep breath and breathe out slowly. एक लंबा गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। रिलैक्स योर लेग्स पोर्शन। पैरों को रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर वेस्ट पोर्शन। कमर के सभी मसल्स को, नसों को आराम देना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर स्टमक पोर्शन। पेट के सभी नसों को आराम देना है। पूरी तरह से रिलैक्स करना है अपने नसों को। पेट के नसों को पूरी तरह से आराम देना है। एक लॉन्ग डीप ब्रीथ। लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे उसे छोड़ना है। पेट को पूरी तरह से रिलैक्स करें। Relax your stomach portion. Relax your all intestines. Slowly relax your chest portion. Relax your back portion. Relax your spine. पीठ के मसल्स को रिलैक्स करना है। Relax your hands. Relax your chest portion. गर्दन को रिलैक्स करें। Relax your face portion. Relax forehead. माथे के मसल्स को रिलैक्स करें। Relax all head nerves. सर के सभी नसों को आराम दें। Take a long deep breath and breathe out. Listen the flute sound. बांसुरी की ध्वनि सुने। Concentrate forehead. Concentrate neck portion. See the blue sky everywhere.
नीला आकाश महसूस करें सभी जगह। कॉन्सेंट्रेट चेस्ट पोर्शन। हवाओं को महसूस करें, वायु तत्व को महसूस करें। Feel the light inside. पंछियों की आवाज सुने, फूलों की सुगंध को महसूस करें। सूरज की किरणों को देखना है, शंखनाद सुनना है। Slowly open your eyes, turn the left side and sit down. Sit in the Swastikasana. So, hope you enjoyed the relaxation. आप सभी ने योग निद्रा और शवासन का एहसास किया होगा। तो अब हम करते हैं प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन होते हैं और माइंड रिलैक्स होता है। तो प्राणायाम के बहुत ही फायदे हैं। आपके जो इंटरनल 5 एयर्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, वायु बोलते हैं उसे, और 5 वायु बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं ऑल 5 ग्लैंड्स पे, 3 ग्लैंड्स पे और 5 चक्रों पे। उसी तरह से 5 जो एक्सटर्नल वायुज होते हैं वो भी काम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम से। तो आइए भस्त्रिका करते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ओके, तो इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप 3 मिनट कर सकते हैं या 5 मिनट भी कर सकते हैं। आपके इसको धीरे धीरे 1 मिनट से धीरे धीरे इसको अभ्यास करते हुए इम्प्रूव करना है। इसी के साथ हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको सांस को लेते हुए छोड़ने की क्रिया करनी है। ओके, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। इसी के साथ हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है इनर लंग्स के लिए और थायराइड के लिए और आपकी माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भ्रामरी में कान को बंद करते हुए आंखों को बंद करेंगे, सांस लेके भ्रमर के जैसे भूंगे मतलब भौरा है उनके जैसे घूम करेंगे, आवाज निकालेंगे। और जैसे ही आपका सांस जाता है फिर से सांस लेते हुए भ्रमर की तरह से आवाज गुंजन करना है। सांस लेना है, ब्रीद इन and do the sound of bees. Okay, relax. Take a long deep breath and breathe out. लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। तो आइए इसके साथ हम लोग एक बंद क्रिया सीखते हैं। जो बंद में आप देखे होंगे कि बंद जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बंद में आपकी जो डायरेक्ट एड्रिनल ग्लैंड है पेट का वो एक्टिवेट होता है
तो ये किस तरह से होता है, और आपका पेट यानी काफी लोगों के आप देखे होंगे फैट्स आराम से बढ़ जाते हैं पेट के, और आपका जो डाइजेशन है, मेन जो हीट आपका बैलेंस रहता है, और ऊर्जा आपकी पेट की ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए इसे करना है। सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस को बाहर ही रोका, पेट को अंदर खींचा, और धीरे धीरे पेट को छोड़ते हुए सांस को लेना है। तो ये उड़ान बंद है, आपको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अग्निसार भी है, अग्निसार क्रिया, सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस को बाहर ही रोका और पेट को अंदर बाहर किया। ये जो क्रिया है वो एम्प्टी स्टमक ही की जाती है और गाइड से ही की जाती है, यानी योगा थेरेपिस्ट या आचार्यों की गाइड से ही की जाती है। तो इससे आपका जो है स्टमक यानी पेट की जो ऊर्जा है वो अच्छे से बढ़ती है, और आपका जो फैट्स है वो आराम से कम होता है। तो एक बार फिर से करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्ट्रेच योर स्टमक इनसाइड, स्लोली स्टमक को बाहर करते हुए ब्रीद इन करें, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीद एंड ब्रीद आउट। तो ये हमारा उड़ान बंद रहा। ठीक है, तो इससे आपको पता चला होगा कि आसन और प्राणायाम धीरे धीरे करते हुए आपका जो माइंड है वो किस तरह से रिलैक्स होता है, और बॉडी जो है वो सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे, और आप जो अगर लो बीपी है, हाई बीपी है, जैसे आपको लो बीपी है तो आपको सिंपल इस तरह से क्लैपिंग करते हुए भी आप बीपी को बढ़ा सकते हैं अच्छे से। क्लैपिंग से आपके जो हमारे आपने देखा होगा सुजोग थेरेपी, हमारे पूरे हाथ में जो ये पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, और ये हम लोग एक्टिवेट करते हैं इस तरह से क्लैपिंग करते हुए। सिंपल क्लैपिंग, बैठे बैठे आप 10 बार 20 बार क्लैपिंग करते हैं तो आपको, क्योंकि सब लोग बॉडी जो है बीपी का चेक नहीं करते हैं, आपको डाउन लगता है कभी कभी, तो आपका जो बीपी का ये है 120 80, तो डाउन हो जाता है, 50 में 60 में भी चला जाता है। जैसे ही आप लो फील करते हैं आपको क्लैपिंग करना है। तो ये हुआ इस तरह से। सिंहासन और हास्यासन भी इम्पोर्टेंट है। सिंहासन जो जैसे है ये आपको रिलैक्स करता है ना, डिप्रेशन और ये रिलैक्स करता है। जीभ को बाहर निकालते हुए इस तरह से सिंह गर्जना करनी है, इस तरह से। तो इससे जो है बहुत जैसे साइकोलॉजिकल क्लासेस होते हैं ये होते हैं। और उस तरह से हास्यासन, हा 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 हा, हास्यासन करते हुए हंसते रहना है, माइंड को रिलैक्स करना है। जिस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो काउंसलिंग करते हुए ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन उसी तरह से आपने देखा होगा कि आसनों का कैसे इफेक्ट होता है। तो आइए हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन करते हुए इसको क्लोज करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे उसे छोड़ें। सांस लेते हुए अपने शरीर में परमात्मा एहसास करें। सांस को छोड़ते हुए भगवान को सभी जगह देखें। Feel the God existence outside everywhere. Concentrate legs. Concentrate west portion. Feel His presence inside. Concentrate stomach. Feel inside stomach portion. Concentrate chest. छाती में परमात्मा एहसास करें।
Concentrate neck portion. Concentrate face. Concentrate forehead. Relax inside. Concentrate in the head portion. मस्तिष्क में ध्यान दें. परमपिता का एहसास करें. मस्तिष्क में सांस लेते हुए शरीर में परमात्मा एहसास करें. सांस छोड़ते हुए feeling outside everywhere. Concentrate forehead, neck and chest. हमारे चेस्ट में अनाहत चक्र है. अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां, 12 प्रोपेंसिटीज हैं. ममता, विवेक, आशा, चेष्टा, चिंता, दंभ, अहंकार, वितर्क, लोलता, कपटता, अनुताप और विकलता. यह 12 वृत्तियां हैं. नेगेटिव, पॉजिटिव. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. प्रेम से हम स्वतः से और दुनिया से जुड़े हैं. प्रेम से हम स्वतः को ठीक करें. प्रेम से हम अपना व्यवहार ठीक करें. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सांस लेते हुए परमात्मा सत्ता को एहसास करें. ब्रीद आउट करते हुए सब जगह उन्हें देखें. नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमामि. Salute to the Lord's lotus feet inside your mind. Touch your forehead, touch your chest. तो ये मेडिटेशन है. ओपन योर आइज. तो इसके साथ साथ आपको देखा होगा कि सभी जो क्रियाएं हैं हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड में हमारे जो 7 चक्रास जाते हैं. अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. ठीक है. तो यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र. तो आप देखेंगे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र ये कंट्रोल टू द कॉस्मिक बॉडी. सहस्त्रार चक्र से हम डायरेक्ट कॉस्मिक बॉडी से ज्वाइंट होते हैं और हमारे सभी एक्टिवेशंस होते हैं, है ना. जो कॉस्मिक यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड से जो एक्टिवेशंस हैं वो सभी चलती रहती है. तो इसके साथ साथ डाइट हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है. डाइट से आपको जो बॉडी है कौन सा आहार आप लेना है ये पता होना चाहिए. जैसे आहार में सात्विक सेंशियंट फूड और म्यूटेटिव यानी राजसिक आहार और तामसिक फूड, है ना, क्रूड फूड. सात्विक आहार में आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाने से आपका बॉडी रिजुविनेट होता है. बॉडी को सही आहार मिलता है, माइंड को सही एक्टिवेशंस मिलते हैं, सेल्स अच्छे एक्टिवेट हो जाते हैं और माइंड कूल रहता है. राजसिक यानी म्यूटेटिव को आप देखेंगे चाय, कॉफी, पेप्सीज और ऑयली फूड, जंक फूड, ये खाने से आप ओवर एग्रीवेशंस होता है. आपका कंट्रोल नहीं रहता है. ज़्यादा चाय पीने से टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, ये आप लोगों को पता है. क्रूड आहार यानी
तामसिक आहार जो एग्स, मीट और ये जो यानी नॉन वेजिटेरियन खाने से आपको प्रोटीन्स तो मिलते हैं, लेकिन जीव हत्या भी होती है, इन्वायरमेंट सर्कल कंप्लीट नहीं होता है, और जो आपका बॉडी जो है क्रूड फंक्शंस, आपको बॉडी मिलती है लेकिन क्रूड फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रूड वृत्तियां जैसे प्रोपेंसिटीज है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती हैं। तो ये है फूड आपके इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड्स आपको खाने हैं। फ्रूट्स बॉडी में ब्रेकफास्ट आप हमेशा फ्रूट से कीजिए, पपीता से। पपीता लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप फ्रूट मतलब जितना आपको अच्छा लगता है उतना पपीता पेट भर के खाएंगे, और फ्रूट में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाएंगे 300 ग्राम, और रॉ फूड जैसे कि खाने के पहले सैलेड्स खाएंगे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, है ना, 700 ग्राम 600 ग्राम। और सब्जियां जो हैं आप रसदार सब्जियां बनाएं, ऑयली सब्जियां नहीं बनाएंगे, और उसमें स्पाइस यानी रेड स्पाइस डालने से बजाय ग्रीन चिलीज डालेंगे तो आपका आहार ऐसे ही ठीक होगा। रात को भोजन एकदम लाइट करना है ना। जैसे आपका लंच, जैसे सूरज उगता है तो आपको ब्रेकफास्ट 9 के पहले करना है, 12 बजे सूरज पीक पे रहता है, आपका स्टमक जो है वो एक्टिवेट होता है, तो उस समय आपको लंच प्रॉपर करना चाहिए। उसमें आपको वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में खानी चाहिए, और जैसे ही आपको डाउन यानी 3 बजे तक 12-1 के दरमियान आपको लंच लेना ही है, तभी एक्टिवेशंस में और उस तरह से सही मात्रा में लंच लेना है। और आपको डाउन में यानी इवनिंग में फ्रूट्स खाते हुए रात को लाइट भोजन लेना है, या सूप और इस तरह से लेते हैं तो आपका पेट सही रहता है। रात को 8 बजे से पहले भोजन करें, तब आपका पेट सही रहते हुए 8 आवर्स 6 आवर्स आपको डाइजेशन में अच्छे से काम करते हुए नींद आपको 6-7 आवर्स मिलती है, और डाइजेशन को भी समय मिलते हुए रिलैक्स होता है, और आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। प्रॉपर डाइजेशन होने से आप सही दिनचर्या चलती है। तो ये सब चीजें हैं, इसको थोड़ा सा समय भी लगेगा एक्सप्लेनेशन में और इस तरह से में। तो आपको कुछ क्वेश्चन आवर्स या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। Yeah, so तो guys, भव्या, just raise your या hands. Yeah, so raise your hands if you have any doubt about this kriya. तो मेरा वॉइस क्लियर था, सभी लोग काफी कुछ समझ पाए शायद कि इंटरैक्शन सेशन हम लोग किसी और दिन रख सकते हैं। उनके तो कैसे लगा, कैसे रिएक्शंस, कैन आई गेट द रिएक्शंस, हाउ फीडबैक कि कैसे लगा सब लोगों को करते हुए? Ma'am, it was really amazing. Like we spent an hour. ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको जिस तरह से सब लोग पावर योगा और इस पे काफी जोर देते हैं, लेकिन पावर योगा से क्या होता है, बार बार सेम आसनास करने पर वो ओवर एक्टिवेशंस होते हैं, आपके वृत्तियां जो प्रोपेंसिटीज हैं, तो वो नहीं करना है। और आसन जो है प्रॉपर उसको समय चाहिए, माइंड रिलैक्स चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी नसों में अकड़न ना आ जाए, ये ना हो जाए। इसीलिए स्ट्रेचिंग करते समय आप थोड़ा सा जो स्ट्रेचिंग्स है वो कर सकते हैं, लेकिन आसन करते समय आप देखेंगे कि प्रॉपर ग्लैंड पे वो एक्टिवेट होता है। जैसे ही आप स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, तो आपके नसें स्ट्रेच होती है और प्रॉपर जो आपका ग्लैंड है वो एक्टिवेशंस में आ जाता है। इसीलिए प्रॉपर सही तरह से आपको सांस क्रिया होनी चाहिए, और सही पोजीशन में आपको रिलैक्सेशन होना चाहिए माइंड से, तभी ये आसन एक्टिवेट और उस तरह से होता है और इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ये सभी चीजें हैं, माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करता है। और साथ में डाइट, अगर आप पावर योगा और इस तरह से जिम भी करते हैं और आप स्ट्रेचिंग्स करते हैं और डाइट आपका सही नहीं रहता है, तो वो प्रॉपर मात्रा में काम नहीं करता है।
तो आशा है आपको सभी को अच्छा लगा, और योग का और आयुर्वेद का। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मैं बॉडी को किस तरह से हम जो डेंगू, कोरोना और बाकी जो ये हैं, इस तरह से हम सहज आयुर्वेद के मेडिसिन घरों में जो किचन आयुर्वेद है, मतलब किचन के जो मेडिसिन है, नींबू नींबू आप देखेंगे कि नींबू बहुत ही आयुर्वेदिक है, मतलब मेडिसिनल है। सिर्फ नींबू गर्म पानी पीने से ही आपका जो बॉडी लेवल है वो आपको टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है ना। और सहज आप 4-5 दिन जिस तरह से इफेक्टेड हो जाते हैं, तो आप नींबू पानी पीने से, गर्म पानी पीने से आपका बॉडी लेवल सही रहता है और सही मात्रा में रहता है। उसी तरह से आपको एक ड्रिंक मैं बता देती हूँ कि हल्का गर्म पानी में आधा नींबू डालते हुए 1 चम्मच हनी और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के अगर पीते हैं, तो ये अपने आप में रिजुविनेट करता है। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक रहती है, और नींबू अपने आप में एसिड्स, नेचुरल एसिड्स रहता है और बॉडी को जो है क्योर करता है। और हल्दी आप देखेंगे, कच्ची हल्दी भी आप खा सकते हैं। और ये जो ड्रिंक अपने आप में बहुत ही हर्बल है, आप इसे मॉर्निंग में एवरीडे ट्राई कर सकते हैं। इवनिंग में आपको लो फील होता है तो आप एक बार ये ड्रिंक ले सकते हैं। आधा नींबू, एक हल्का गर्म पानी, 1 गिलास पानी और उसमें आधा चम्मच, उससे कम हल्दी डाल के आपको पीना है। तो उसी तरह से आप नींबू, जैसे ही आपको लो फील होता है, हाई मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो नींबू पानी पी के आप उसको ये कर सकते हैं। एक आंवला, आप बॉइल्ड आंवला रोज खा सकते हैं। बॉइल्ड आंवला से आपकी इनर इम्यून कैपेसिटी बढ़ती है। और जो इलायची है, सॉरी, इलायची और लौंग जो है वो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ाता है। जैसे ही आपको फील होता है, होप सभी के पास जो है आप ऑक्सीमीटर अगर इस दरमियान में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आपका 94 से नीचे होता है तो आपको भस्त्रिका और डीप ब्रीदिंग करना है। लेकिन आपके घरों में ऑक्सीमीटर रहता है तो भी बहुत अच्छा होता है, है ना। तो इसीलिए इलायची और लौंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे इसका काढ़ा भी आप कर सकते हैं। इलायची, लौंग, तुलसी, अदरक। अदरक जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही एक्टिवेट करता है, मतलब फ्लो ठीक से रखता है। आपके जो मतलब नाभि को जो है, मतलब पेट को अच्छा एक्टिवेट करता है। कफ जो है आपका, जैसे ही कफ आप देखेंगे कोरोना में कफ को मतलब लंग्स पे अटैक करता है, तो कफ बढ़ाता नहीं है। इसीलिए 3 बार दिन में आप अदरक और हनी ले सकते हैं। अदरक को कस करके हुए आप उसमें हनी लेके उसका चाट कर सकते हैं, या फिर अदरक को कस करते हुए थोड़ा सा गुड़ डाल के भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको सौंठ में भी आप अदरक डाल के ले सकते हैं, हनी डाल के चाट कर सकते हैं। तो ये दिन में 3 बार या 2 बार भी आप कर सकते हैं, तो आपका ये अच्छा होता है। जैसे ही आप थोड़ा-सा कुछ मतलब टिप्स मैं दे सकती हूँ, जैसे ही आप हम लोग मास्क वगैरह तो पहनते ही हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्टेड वगैरह होता है, तो आपको सरसों का तेल नाक में आप उँगली से भी डाल के आप इसे कर सकते हैं। और इसमें जो नेचुरोपैथी की कुछ क्रियाएँ हैं, नासापान, जैसे 2-3 बूँद आपको, लेकिन ये थोड़ा-सा अभ्यास करके करना है कि 2-3 बूँद सरसों का तेल आप नाक में डाल के सिंपली ऐसे रखते हैं, तो आपका जो सरसों का तेल है गले में आता है। तो आपको जो नोज़ल ट्रैक है वो ठीक होता है ना? तो आपको ये थोड़ा-सा ध्यान से अभ्यास से करना पड़ता है। 2-3 ड्रॉप से इस तरह से करते हुए ऐसे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि नोज़ल ट्रैक से ये यहाँ पे आता है। तो ये नोज़ल ट्रैक आपका ठीक हो जाता है। तो ये क्रियाएँ थोड़ा-सा आपको आचार्यों के साथ, ये डॉक्टर के साथ, आयुर्वेद डॉक्टर के साथ या योगा थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करते हुए करना है। और वैसे भी नोज़ल, क्योंकि सरसों आप देखेंगे, सरसों एंटीसेप्टिक्स है और आयुर्वेदिक भी है, तो लेकिन खाने में इसके थोड़ा-सा गरम रहता है, तो इसको ध्यान से ये करना है। Sorry to interrupt you, ma'am. तो Actually, there's a question ओके, by Surya, like she's raising her hand. ओके, Uh, बताइए। very good evening, ma'am. Thank you. आपने बहुत ओके। अच्छा सेशन दिया. I'm into gym and strength training, और I always tell myself that whenever I look into my schedule, मैं देखती हूँ कि मैं योगा में हमेशा लैग करती हूँ.
मैं जानना चाहती हूँ अच्छा, कि सूर्य नमस्कार मुझे कैसे हेल्प करेगा इन माय डे टू डे एक्टिविटीज। हाँ, सूर्य नमस्कार तो आपको हेल्प करेगा। सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं, लेकिन अगर ये जो आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है तो आप इसे कर सकते हैं। आपको स्पाइन प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलिटिस है या फिर आर्थराइटिस है घुटने के, तो आप इसे किसी के अभ्यास में कर सकते हैं, और सीवियर वगैरह है तो आपको इसे ना करें। तो सूर्य नमस्कार मतलब जैसे आपकी नॉर्मल बॉडीज है तो आप इसे कर सकते हैं। तो इसको आपने देखे कि बहुत सिंपल पोस्चर्स हैं सूर्य नमस्कार के, और इसको 3 बार, पहले शुरुआत में आप 2 बार भी करें तो भी फर्क पड़ता है, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और 4 बार और फिर 5-6 बार आप इसे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से आपको आपके सभी तीनों ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और आपको रिलैक्स लगता है। लेकिन ये है कि आपका इसको स्पाइन आपका प्रॉपर होना चाहिए, कहीं इसको स्पाइनल कॉर्ड्स और मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह नहीं होगा। आर्थराइटिस जो पेशेंट्स है वो इसे ना करें। तो क्योंकि इसके लिए आपके बाकी आसन तो हैं, वो कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ओके, तो सूर्य नमस्कार आपका बॉडी सही है तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सांस क्रिया सीखनी होगी कि सांस क्रिया कैसे करनी है, सांस छोड़ना कैसे है, सांस सीखना। ओके, तो ये है। थैंक यू मैम। और बाकी हाँ, ओके, और किसी के क्वेश्चंस होंगे तो। ओके, तो I ये guess योग people का have जो, asked. हाँ, तो योग मतलब ये नहीं है, योग का जो ये संयोग, योग इत्युक्त परमात्मा जीवात्मा, जीव और शिव का मिलन, यानी जीव और भगवान का मिलन। तो जब भगवान का मिलन जो है शरीर से, तो हम लोग एहसास कर रहे हैं। सोल तो आपको पता है, आत्मा का कोई भी आत्मा दिखती नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, और वह सूक्ष्म आत्मा हमारे शरीर में है। तो ये शरीर हमारी दूसरी आत्मा है। तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान दें, इसको स्वस्थ रखें, इसका केयर करें, तब शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप सभी क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको मैंने मतलब फर्स्ट सेशन में जितना हो सके वो बता दिया। इसके लिए कैसे आहार ठीक है, प्राणायाम कैसे अच्छा है, और मेडिटेशन कैसे। तो जैसे शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी, और आत्मा ठीक रहेगी तो आप जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कि पूरे माइंड एक ही, कॉस्मिक एनर्जी मतलब हम वो लोग बोलते हैं भगवान एक ही है। तो एक क्या होता है, एक मतलब ओनली वन माइंड, है ना, एक ही माइंड है। तो इसीलिए जो एक माइंड होता है वही, इसीलिए वो जो कॉस्मिक तारक ब्रह्म है, भगवान है, वो हम सभी के लिए देख सकते हैं। जैसे हम हमारे शरीर में एक भाव से देखते हैं, हम हमारे आँखों को, हाथों को, चेस्ट को, ऑर्गन्स को अलग भाव में नहीं देखते हैं, एक ही भाव में हम लोग अपने शरीर में देखते हैं। जैसे हम लोग पैरों को देखते हैं तो हम लोग अपने पैरों को अलग नहीं समझते, अपने मस्तिष्क को सोचते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क और पैर हम लोग अलग नहीं समझते, एक ही भाव में देखते हैं। उसी तरह से एक ही भाव में यह परमात्मीय सत्ता, जो ग्लोब है, जो यूनिवर्स है, वो एक ही भाव में है, एक ही माइंड में है। इसीलिए हम लोगों को इन्वायरमेंट का केयर करना है, हम लोगों को दूसरों का मतलब व्यवहार में एक दूसरे के साथ केयर करना है। तो इसीलिए मनुष्य मनुष्य के साथ, मानव मानव के साथ, और मानव प्रकृति के साथ, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट नेचर कैसे सुधरे, को एग्जिस्ट हो, इसे ध्यान देना है। जब हम लोग प्रकृति का केयर करेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। अकेला आदमी इस निराकार पर मतलब बंजर जमीन में कितना मुश्किल होता है, ये आपको पता है। तो उसी तरह से हम हमारे परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हर सहयोग देते हुए हमें इसे रहना है, करना है। तो यही योग है। तो ठीक है, तो होप आज का सेशन सभी लोगों को अच्छा लगा। ओके, हाँ, तो but I इसीलिए was योग में वेरी रहे, मच मैम। सहयोग में रहे, या एंड being love yourself, love others, and spread love to everyone. Okay, namaskar, take care. Namaskar, ma'am. So there's a lot to learn from Okay, you.
So since we have a limited time and we have classes like after Yes. this, so we Okay. need to close this session. Yes. Thank you so much for Okay. for Namaskar. spending your time with us Yeah. on International Yoga Day. Yeah. Thank you. तो योग करें, योग को प्रमोट करें, योग करें. ओके, नमस्कार. थैंक यू. Namaskar. Thank you, ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.